So, good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well. Let us start from where we stopped yesterday. That is, today we are going to see about the liquid state, right? Before we continue, we have to see one activity. Let us see what it is. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink, and container of different shapes. Put a 50 ml mark on this container using a measuring cylinder from the laboratory. And what will happen if these liquids are spilled on the floor? Measure the 50 ml of any one of the liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remains the same? Does the shape of the liquid remains the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? So we observe that the liquids have no fixed shape but have fixed volume. अभी हमने 1 लीटर से पानी ले लिया, उसको हमने राउंड बोतल में डाला तो उसका शेप राउंड हो गया, लेकिन रहा तो 1 लीटर ही। अभी हमने एक कंटेनर लिया स्क्वायर बॉक्स टाइप का, उसके अंदर 1 लीटर डाला तो उसका शेप स्क्वायर शेप का हो गया, लेकिन रहा तो वो 1 लीटर ही। ट्रायंगुलर शेप का कोई कांच का हमने लिया, उसके अंदर डाला तो लिक्विड का शेप ट्रायंगुलर हो गया, बट उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है जैसे सॉलिड में होता है, राइट? बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change the shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो लिक्विड जो होते हैं वो एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में आराम से ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम, तो वो फ्लो होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, बट दे आर नॉट रिजिड. Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in the water, and these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants, and all the living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids, and the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. This is due to the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. अभी देखो, लिक्विड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसके आप अंदर सॉलिड, जैसे शक्कर जो होती है वो सॉलिड होती है, उसको आप मिलाओ तो डिज़ोल्व हो जाती है. अभी पानी है, उसके अंदर आपने मिल्क डाला तो मिल्क एक अलग आइडेंटिटी है, वाटर एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन दोनों मिक्स हो जाते हैं, राइट? अभी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरा कोई गैस है, वो भी पानी में मिलाओ तो मिल जाता है. तो लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट उसके अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं, राइट? इसकी वजह ये है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में अच्छी खासी जगह होती है जहाँ पर दूसरा कोई पार्टिकल आके आराम से एडजस्ट हो सकता है, राइट? Now we are moving on to the gaseous state. Have you ever observed the balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. ये तो कॉमन बात है कि हमने फुग्गे वाले को देखा होगा, एक ही सिलेंडर से वो बहुत सारे फुग्गे भर के बेचता है. तो कभी उसको आप पूछो कि एक सिलेंडर में से आप कितने फुग्गे फुला सकते हो और वो फुग्गों में कौन सा गैस होता है, ये आपको पता लगाना. ये आपकी एक एक्टिविटी है खुद की तरफ से, राइट? जो भी आंसर ढूंढ लेगा वो मैसेज कर देगा ग्रुप में, राइट, कि कौन सा गैस होता है बलून्स में भरने वाले. ओके, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है. लेट अस सी क्या है वो. Take 300 ml syringes and close the nozzles by the rubber cork as shown in the figure. अभी इंजेक्शन वाली जो सिरिंज होती है ना 100 ml की, वो हमको लेना है और रबर का बुच उसके ऊपर लगा देना है, फिगर में जैसे दिखाया है वैसे. कहाँ है फिगर में? ये रहा, देखो
ठीक है, यहाँ पर हमने बुच लगा दिया। Okay, let us see what we have to do further. Remove the pistons from all the syringes and leave one syringe untouched. Fill water in the second and pieces of chalk in the third. तो दूसरे में पानी भरना है और तीसरे में चॉक पाउडर भरना है हमको। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब वापस उसके पीछे जो पिस्टन होता है जिसको हम दबाते हैं वापस उसमें भर देना है सिरिंज के अंदर। And you may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for the smooth movement. तो वैसलिन या ऑयल लगा दो ताकि वो इजीली मूव कर सके। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अभी ट्राई करो सिरिंज को दबाने की और देखो कि कौन सी सिरिंज में इजीली पिस्टन जो है वो दब सकता है हमसे। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in and what do you infer from your observation? तो एक में हमने पानी भरा, एक को ऐसे ही छोड़ दिया और एक में हमने भरा है चॉक पाउडर और फिर हमने तीनों सिरिंज को पिस्टन दबाने की कोशिश की। तो क्या हमको मिलता है? We have observed that the gases are highly compressible as compared to the solids and liquids. तो लिक्विड और सॉलिड को कंप्रेस करना इतना आसान नहीं होता जितना गैस को आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड इन द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस। तो घर में जो हमारे लाल बोतल आती है जिससे गैस चूल्हा जलता है, राइट, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG। और हॉस्पिटल्स में बीमार लोग जो सांस नहीं ले पाते उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है बाहर से, तो वो भी कंप्रेस्ड करके भरा जाता है। आप साइकिल में या अपने व्हीकल में जो हवा भरते हो वो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जिसको आप साइकिल के ट्यूब में या उसमें भरते हो, राइट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। आज की तारीख में CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हरे कलर की रिक्शा होती है, राइट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलती है, तो वो फ्यूल के जैसे भी चल सकता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर्ड इजीली। तो क्योंकि उनको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो तो बहुत सारा गैस जो है वो आप एक सिलेंडर में भर सकते हो। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग द बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल। अभी मम्मी किचन में क्या बना रही है? मैगी बन रही है, पास्ता बन रहा है, इडली बन रहा है, तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है किचन में जाने के बगैर। तो वो स्मेल आती है वो भी हमको बता देती है। तो स्मेल क्या है? गैस है। और हवा जो है वो तो चारों तरफ फैली हुई है, तो एक गैस दूसरे गैस में आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है और हमें पता लग जाता है। The particles of the aroma of the food mixed with the particles of the spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of the hot cooked food reaches us in seconds. Compared this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो गैस जो होता है उसमें दूसरा गैस जल्दी से क्यों डिफ्यूज़ हो जाता है? तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, राइट। तो सॉलिड में भी होते हैं, वो भी मूव करते हैं लेकिन हमको दिखता नहीं है, इतनी स्लो मूवमेंट होती है। लिक्विड में भी होती है और गैस में ज़्यादा होती है, राइट। तो स्पीड ज़्यादा होती है और एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप भी ज़्यादा होता है, राइट, जिसकी वजह से एक गैस दूसरे गैस में आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. अभी क्या होता है
पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता, ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, तो रैंडम मूवमेंट होती है गैस में, ठीक है। और स्पीड भी हाई होती है उनकी, तभी तो देखो जब साइकिल में से हवा निकालोगे तो आवाज़ कैसी आती है, क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट स्पीड एक गैस दूसरे गैस से टकराता है, इसकी वजह से आवाज़ आती है। ओके, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये एक स्पीड में यूँ जा रहा है, ये एक स्पीड में यूँ जा रहा है, तो कभी दो टकराएंगे। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है और एक पार्टिकल जो है वो जिसमें हमने भर के रखता उसके साथ भी टकराता रहता है मूवमेंट की वजह से। सो प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। ओके, तो हर एक कंटेनर की यूनिट एरिया के उसके ऊपर फोर्स लगता है। फिगर ए, बी एंड सी shows the magnified schematic pictures of three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in these three states of matter। तो हमने गैस में भी देखा, लिक्विड में भी देखा और सॉलिड में भी देखा कि पार्टिकल्स के बीच में देखो जगह यहाँ फर्स्ट ए में थोड़ी कम है, बी में ज़्यादा है और सी में बहुत ज़्यादा है, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, ठीक है। हियर देयर आर सर्टन क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस आर गिवन, राइट, इसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स, कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स, यानी कि क्या मैटर जो है वो एक में से दूसरे स्टेट में जा सकता है, सॉलिड वाला लिक्विड हो सकता है, लिक्विड वाला गैस हो सकता है, या सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस हो सकता है, जो गैस है वो लिक्विड हो सकता है, या जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड हो सकता है। दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड डू रिवाइज द चैप्टर।